नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे कंपनीज़ देखेंगे जो काफ़ी हाई ग्रोथ कंपनीज़ है और उनके वैल्यूएशंस काफ़ी रीजनेबल है, राइट? सो आई हैव a short list of 8 companies. This is just a short list. I'll do a level 1 analysis. If you find these companies interesting, you can do a level 2 analysis at your end, or you can approach one of these financial advisors to kind of help you out. These are not stock recommendations. This is just for educational purpose. So the disclaimer around this has to be very clear. ये स्मॉल एंड माइक्रो कैप कंपनीज़ है। मैंने कुछ एक शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया इस्तेमाल किया इन कंपनीज़ को शॉर्ट लिस्ट करने का। शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया का लिंक मैंने क्वेरी इस्तेमाल की है स्क्रीनर पे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। यू कैन यूज़ दैट लिंक, यू कैन ट्वीक इट हियर एंड देयर एंड यू कैन यूज़ इट टू गेट अ ब्रॉडर सबसेट ऑफ कंपनीज़। तो मैं थोड़ा क्राइटेरिया डिस्कस कर लेता हूँ। सो आई एम लुकिंग एट कंपनीज़ विद सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ विच हैव एन एक्सपैंडिंग सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ। तो पिछले एक साल का जो sales growth profit growth hai, it has to be more than the last 3 years sales growth profit growth. So this is one criteria. The next criteria is expanding quarterly profit growth. मतलब मैं ऐसे कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करके पढ़ना चाहता हूँ जिनका sequential growth है, sequential quarterly growth has to be expanding. मतलब Q4 जो recent quarter था या latest quarter था, Q4 था, Q4 का PAT has to be more than Q3 and Q3 का should be more than Q2 जो उसका preceding quarter है. So this is the other criteria. तीसरा criteria is the PE has to be less than 20. तो PE is less than 20. You can use PEG as well. PEG less than 1 अगर आप use करोगे तो भी आपको एक similar shortlist मिल जाएगी companies की. And the last one, there are certain kind of sectors which have excluded. One is commoditized cyclicals, जैसे sugar companies, paper companies को मैंने exclude किया है क्योंकि ये companies के अलग ही patterns होते हैं। तो अगर मैं वैसे companies को यहाँ पे shortlist करके समझाता तो there would be unnecessary noise and these companies or these sectors would just add unnecessary noise to the shortlist of companies that we are going to discuss. तो इनका अलग ही कुछ pattern है। तो IT proxies for example या IT companies जो है, these are correcting right now. We do not know what valuations the IT sector is going to settle at. Only when we know कि ये this is how we value them, then we can try to kind of understand the sector better or understand certain companies in that sector better. And finally banks और NBFCs को मैंने exclude कर दिया because the way you value banks and NBFCs is completely different. तो मैंने ये सारी चीज़ों को यहाँ पे exclude कर दिया है. I just want to give another disclaimer कि the companies that we are going to discuss, there is a possibility that one or two companies could be in my portfolio. So these are not buy and sell recommendations. These are just educational videos, right? So the first company we start with is Signpost. Signpost एक marketing और advertising company है। जो billboards आप देखते हो तो billboards दो तरह के होते हैं, एक तो static billboards होते हैं और दूसरे digital billboards होते हैं। तो static billboards में ना पिक्चर चेंज नहीं होती, मैन्युअली उसको पिक्चर चेंज करना पड़ता है। मतलब जो एडवर्टाइजमेंट दिखा रही है उसको मैन्युअली चेंज करना पड़ता है। पर डिजिटल बिलबोर्ड्स जो होते हैं वो प्रोग्रामेटिक होते हैं, उनको ना आप चेंज करते हो, मतलब एक प्रोग्राम रन करके आप उनको चेंज करते हो एड स्लॉट्स, टाइम स्लॉट्स के मुताबिक। तो ये कंपनी जो है साइनपोस्ट, ये बिलबोर्ड्स लगाती है, डिजिटल बिलबोर्ड्स लगाती है। एंड ये डिजिटल बिलबोर्ड्स कहाँ लगाती है? ये जो भी हमारे जो ट्रांजिट पॉइंट्स होते हैं, मेट्रोज़, मॉल्स, कमर्शियल स्पेसेस जो होते हैं, एयरपोर्ट्स जो होते हैं, वहाँ पे ये कंपनी अपने बिलबोर्ड्स लगाती है। करीबन 15 years दिस कंपनी हैज़ बीन in operations or in existence for the last 15 years and it is driven by this theme of urban development. तो जहाँ जितने ज़्यादा malls बनेंगे, जितने ज़्यादा commercial spaces develop होंगे या फिर transit points बनेंगे तो उतने ज़्यादा बिलबोर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। बट frankly speaking the business model of this company is a very average business model. तो ये एक ऐसे स्पेस में ऑपरेट करती है जो एक बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव स्पेस है। तो काफ़ी रीजनल कंपटीशन इस कंपनी को बहुत ज़्यादा मिलता है। इट हैज़ नो बार्गेनिंग पावर विद द बायर्स, इट डज़ नॉट हैव एनी बार्गेनिंग पावर विद द सप्लायर्स एज वेल। द सप्लायर्स ओवर हियर इज़ द म्यूनिसिपैलिटी, क्योंकि या फिर गवर्नमेंट्स जो होते हैं जो रियल एस्टेट सप्लाई करते हैं उनके साथ भी कुछ इतना कुछ ये नहीं होता है इस कंपनी का, कुछ बार्गेनिंग पावर नहीं होता है। एंड ऐसे स्टॉक्स को ऊपर जाने के लिए यू नीड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टेल विंड। मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए जैसे 10 साल पहले वो स्मार्ट सिटीज़ बनने का कुछ कुछ घोषणा हुई थी, कुछ पॉलिसीज़ हुए थे, वो बना नहीं बना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि ऐसे कंपनीज अगले 6-8 महीने में इनके स्टॉक्स बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर जाए, देन यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेलविंड, बिकॉज इफ़ द बिजनेस मॉडल इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, इफ़ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज़ वेरी एवरेज, देन यू नीड अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग टेलविंड। तो टेलविंड मुझे नहीं लगता अर्बन डेवलपमेंट का टेलविंड इतना स्ट्रॉन्ग होगा। देयर इज़ अनदर कंपनी कॉल्ड एज
आउटडोर मीडिया, तो ये दो कंपनीज़ का मैं एनालिसिस कर रहा था, मुझे ये साइन पोस्ट बेहतर लगी, तो इसलिए मैंने साइन पोस्ट को शॉर्टलिस्ट किया इस स्पेस में, डिजिटल एड्स के स्पेस में. आउटडोर मीडिया एज अ कॉम्पिटिटर, यू कैन प्रॉब्ली लुक एट दैट कंपनी एज वेल. राइट, सो सेकंड कंपनी विच वी डिस्कस इज़ गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस. तो गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस जैसे नाम सजेस्ट करता है ईपीसी कंपनी है और ये रियल एस्टेट में ईपीसी है. तो थोड़ा मैं रियल एस्टेट में जो कंपनीज होते हैं उनके बिजनेस मॉडल समझा देता हूँ, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि इस कंपनी को जो वैल्यूएशन मिला है वो सही मिला है या फिर आगे जाके इसकी री रेटिंग वगैरह कुछ हो सकती है. राइट, तो रियल एस्टेट में क्या होता है कि एक टाइप के ऐसे बिजनेस मॉडल्स होते हैं जहाँ पे जो कंपनी है उसके पास लैंड बैंक, जहाँ पे आप प्रॉपर्टी बना रहे हो, लैंड बैंक उसका होता है. प्रॉपर्टी बनाने की जो भी सामग्री है, चाहे फिर वो मशीनरी हो, मैन पावर हो, वो भी उसका होता है. एंड ये कंपनी एंड टू एंड वो प्रॉपर्टी बना के फिर उसको बेचना शुरू करती है. सो दिस इज एन एंड टू एंड बिजनेस मॉडल, कंप्लीट, मतलब पूरा कैप्टिव है, सब कुछ कंपनी के पास है. सो दीज काइंड ऑफ कंपनीज get a valuation, very rich valuation, somewhere in the range of like 50 to 60. The Prestige जैसी company, they get very rich valuations because the land bank is theirs. To develop that land bank, whatever machinery and manpower and raw materials are needed, they ensure, they procure it and they do it. And that's why they have complete control on that property. So Prestige जैसी company is one type of companies which have a very high valuation. Now the second type of companies are in where the land bank does not belong to the company. तो किसी और का लैंड है बट उसके ऊपर का या फिर उसको डेवलप करने का या फिर उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो भी मशीन चाहिए, मैन पावर चाहिए, वो कंपनी प्रोवाइड करती है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंपनी लाइक गोदरेज प्रॉपर्टीज़. तो इनको ये बिजनेस मॉडल थोड़ा एक कमज़ोर बिजनेस मॉडल है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन. तो इसको वैल्यूएशंस भी 25-35 PE के मिलते हैं. तीसरे टाइप के कंपनीज वो होते हैं जिनके पास ना लैंड बैंक होता है, ना मशीनरी, ना मैन पावर होता है. ये कंपनीज बस डाउनस्ट्रीम ईपीसी कंपनीज होते हैं जो बस किसी और के लैंड पे, किसी और का कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ किसी और की मशीन लेके बस एक प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं. मतलब बस एक प्रॉपर्टी बनाना काफ़ी एक ऐसा लग रहा है कि मैं आई एम बी लिटलिंग देयर वर्क. आई एम नॉट बी लिटलिंग देयर वर्क. दे वर्क ऑन अ वेरी एसेट लाइट मॉडल. इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी जो रहते हैं वो ठीक ठाक रहता है. 30% आई थिंक ईपीसी कंपनीज है, सॉरी ईपीसी कंपनीज के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स कम रहते हैं, इसलिए इनको पी जो मिलता है वो बहुत कम पी मिलता है, 12, 13, 15 का पी मिलता है. तो क्या होता है कि व्हेन यू सी अ लो पी, राइट, पीपल गेट एक्साइटेड कि यार जैसे सोलर कंपनीज में क्या होता है कि यू सी द सेल्स ग्रोथ एज 150%, प्रॉफिट ग्रोथ एज 200%, एंड देन यू थिंक अरे इसका पी तो सिर्फ 13 का है या 17 का है, दिस इज लाइक बेस्ट, एकदम सस्ते में मिल रहा है. बट द थिंग इज़ कि उस सेक्टर का पी उतना होता है बिकॉज ईपीसी वर्क इज़ डाउनस्ट्रीम वर्क. ये बस बोलते ना कि असेंबली का काम करते हैं ये लोग, इनके पास खुद का कुछ होता नहीं है, मतलब बहुत डाउनस्ट्रीम काम होता है. एंड द मार्केट गिव्स द सेक्टर अ पी ऑफ 15, 14, 20. दिस इज नॉट गोइंग टू अप्रिशिएट, इट विल ओनली अप्रिशिएट व्हेन द टेलविंड इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग. तो अगर आप देखो अभी सोलर ईपीसी कंपनीज़ का टेलविंड इतना ज़बरदस्त है क्योंकि सोलर के कैपेसिटीज़ इतने सारे आ रहे हैं, बट बहुत कम कंपनीज़ है जो 20p क्रॉस करके ऊपर गई है. राइट, दीज आर प्रोडोमिनेटली कंपनीज इन द मिड स्ट्रीम और द अपस्ट्रीम स्पेस जो ऊपर गई है. तो इवन इफ़ यू लुक एट अ गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस, क्या आपको लगता है कि ये कंपनी का पी बढ़ेगा? क्या आपको लगता है मार्केट इसको गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का पी देगा व्हेन द मार्केट नोज दैट इट वर्क्स ऑन अ वेरी एसेट लाइट मॉडल? इस कंपनी का ना लैंड बैंक है, ना मशीनरी है, ना मैन पावर है, सब एकत्र करके इकट्ठा करके कुछ बनाने की कोशिश करिए. तो मार्जिन्स ज़्यादा है इस कंपनी के, सॉरी मैं करेक्ट करूँगा, मार्जिन्स ज़्यादा है. ईपीसी कंपनी होने के बावजूद भी मार्जिन ज़्यादा है, इसके 30% के मार्जिन्स है जितना मुझे दिख रहा है, मैंने नोट्स में यहाँ पे लिखा है. बट इट्स एन ईपीसी प्लेयर एंड समवेयर I think it deserves a PE of less than 20. So this is what my opinion about these two companies. Not a great opinion about these two companies, but we are trying to brainstorm कौन सी कंपनी, कौन सा बिजनेस मॉडल आगे जाके हमें लगता है कि री-रेट हो सकता है. तो थर्ड कंपनी जो है मुझे लगता है कि ये बेहतर कंपनी है. राइट, तो थर्ड कंपनी इज़ मयूर यूनिकोटर. ना क्या होता था कि 2 साल पहले जब मैं ना OEMs का डेटा देखता था, मतलब ऑटो OEMs का डेटा देखता था, व्हेन आई यूज्ड टू गो थ्रू 2-wheeler, 3-wheeler, 4-wheeler sales, I used to find the sales very stagnant. So after COVID, there was almost 1.5 year when the sales of OEM companies, 2-wheelers and 4-wheelers, passenger vehicles, the sales were stagnant. But I used to see all these auto ancillary stocks like Lumax and FIAM and SGS Enterprises, they used to just go up.
तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि यार ये तो वॉल्यूम ग्रोथ तो ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है, या फिर वॉल्यूम ग्रोथ बहुत धीमे तरीके से बढ़ रहा है, बट ये जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो ऑटो कंपनीज को सप्लाई कर रहे हैं, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्यों बढ़ रही है, मतलब ऐसा क्या हो रहा है। तो दो चीज़ें हो रही थी उन ऑटो एंसिलरी कंपनीज में, विच इज़ समथिंग विच इज़ हैपनिंग हियर एज वेल इन मयूर यूनिकोटर एज वेल। एक तो क्या हो रहा था कि कंटेंट पर व्हीकल बढ़ रहा था। तो फॉर एग्जांपल आप टू व्हीलर बनाते हो तो the company used to initially just provide the clutch, but then it started providing the lamp as well, or the tail lamp as well, or the mirror as well. तो content per vehicle जब increase होता है then volume growth हो रही है, volume growth फिर sales growth में दिख रहा है, sales growth कहीं ना कहीं profitability में दिख रहा है, तो इसलिए stock price ऊपर जा रहा है। The other thing which happened was the premiumization thing, कि घर पे किस तरह इंटीरियर सुंदर चाहिए उस तरह कार के अंदर भी चीज़ें बहुत सुंदर चाहिए। तो इंटीरियर प्रीमियमाइजेशन इज व्हाट, वैल्यू ग्रोथ इज व्हाट अ लॉट ऑफ कंपनीज लाइक SGS Enterprises saw। तो मयूर यूनिकोटर इज ऑन द प्रीमियमाइजेशन साइड। तो ये कंपनी जो हमारे जो सीट्स होते हैं कार्स के या फिर बाइक्स के वो बनाती है। तो ये तो वही मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सीट्स बनाने के लिए आपको सिंथेटिक रबर चाहिए विच इज़ अ क्रूड डेरिवेटिव। क्रूड के प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं, बट इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इसलिए बढ़ रही है बिकॉज दिस कंपनी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर। तो इनके जो क्लाइंट्स है BMW, Audi, मर्क, ये जो भी जर्मन बेस्ड कार्स है, यूरोप बेस्ड कार्स है, इनके क्लाइंट्स है, एंड 45% of the business or the top line comes from exports। तो एक depreciated रूपी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है मयूर यूनिकोटर्स को। तो दैट्स फेयर, यू नो, इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ROE, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है, और मार्केट ने कहीं ना कहीं इसको थोड़ा डिस्काउंट कर लिया। इसका स्टॉक प्राइस अगर आप देखो बहुत रिसेंटली ब्रेकआउट देके ऊपर गया है। तो मयूर यूनिकोटर इज़ अ गुड कंपनी, 25% EBITDA है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। मतलब निटिंग टू फैशन, मतलब पूरा जो सीट्स जो बनते हैं राइट फ्रॉम निटिंग टू फिनिशिंग पूरा वो बनाती है, एंड इट्स अ गुड कंपनी विच यू कैन डू a level 2 analysis, right? So this was Mayur Unicoters। The next company is Questcorp। इसको हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं। तो Questcorp बेसिकली जो GCCs में रिक्रूटमेंट हो रहा है उसका एक सॉलिड थीम है इसके पीछे। तो IT का रिक्रूटमेंट थोड़ा ठंडा पड़ा है, बट GCCs में जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, उसका डिमांड बढ़ते ही जा रहा है। IT इज़ प्रोडोमिनेटली ऑन द कोडिंग साइड, बट जो GCCs में रिक्रूटमेंट हो रहा है वो HR, मार्केटिंग, आई मीन मल्टीपल थिंग्स, ऑल द verticals that there are in an organization, you know, जो back end offices है, they are recruiting that for all these Fortune 500 companies which are in the US and Europe। and GCC के जो salaries होते हैं, or the employees who get inducted into GCCs, the salaries are 30 to 40% more than what IT personnel get। तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा इस कंपनी को हो रहा है। तो इसका ग्रोथ जो है, सेल्स ग्रोथ सिंगल डिजिट है, बट इसका प्रॉफिट ग्रोथ इज़ मोर देन 30%, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है, इसका भी ROE काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और मिडल ईस्ट में जो क्रिप्टो करेंसीज़ के जो रिक्रूटमेंट्स एटलीस्ट 3 महीने पहले से बहुत हो रहे थे, पूरा दुबई में ही क्रिप्टो एक तरह से कैपिटल बन चुका है। तो दैट इज़ व्हाट दिस कंपनी हैज़ गॉन थ्रू एंड सीइंग अ लॉट ऑफ वैल्यू ग्रोथ। तो क्वेस्टकॉर्प इज़ वन कंपनी विच यू कुड रीड फर्दर, राइट। द नेक्स्ट कंपनी इज़ उदय ज्वेलर्स। तो हमने एक और कंपनी ज्वेलरी में डिस्कस की थी, श्रृंगार, अगर आपको याद होगा। श्रृंगार जो है ये एक B2B मॉडल पे काम करती है, बट वो सिर्फ मंगलसूत्र बनाती है। तो मंगलसूत्र बनाती है और फिर ये जो फ्रंट एंड B2C कंपनीज होते हैं जैसे तनिष्क और गाडगिल और कल्याण, उनको देती है, और ये कंपनीज फिर एंड कस्टमर्स को बेचते हैं। उसी प्रकार उदय ज्वेलर्स जो है ये कंपनी ना स्टडेड ज्वेलरी बनाती है। तो अब गोल्ड इतना महंगा हो गया तो लोग स्टडेड ज्वेलरी ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए कंपनी के प्रॉफिट्स में या सेल्स ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखा है। 150% का सेल्स ग्रोथ है, करीबन 200% का प्रॉफिट ग्रोथ है, और ये कंपनी एक B2B मॉडल पे काम करती है। तो फिलहाल जो उसको PE मिला है 20 के नीचे का PE मिला है, श्रृंगार को भी 20 के नीचे का PE मिला है। तो B2B पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपको 20 तक का PE दिया जाएगा, बट अगर आप B2C में घुसने की कोशिश कर रहे हो तो आपका जो एक री-रेटिंग could be on the horizon। So Shringar is not getting into the B2C space, but Uday Jewelers has decided to get into the B2C space। तो ये कंपनी खुद के रिटेल आउटलेट्स निकाल रही है। So what it completely depends कि कितना अच्छा एग्जीक्यूशन कर पाती है। अगर अच्छा एग्जीक्यूशन करेगी तो कंपनी को री-रेटिंग मिल जाएगा। So they work on a B2B model as I told you before। तो मार्जिन्स इनके बहुत कमज़ोर है, 6% 7% के मार्जिन्स दोनों कंपनीज के हैं। तो उदय ज्वेलर्स इज़ वन कंपनी विच यू कैन लुक फर्दर और रीड फर्दर, राइट। द नेक्स्ट कंपनी इज़ SKM एग प्रोडक्ट्स। तो आपको जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हम
खाते हैं, जो जिम करते हैं लोग तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स खाते हैं, या फिर बेकिंग में जो ना प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, तो ये कंपनी बेसिकली एग जो होता है, एग योक या फिर एग वाइट होता है, उसको प्रोसेस करके उनके डेरिवेटिव्स बनाती है, जो ना ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स में जाते हैं या फिर मेयोनेज़ में जाते हैं, या फिर बहुत जगह पे जो बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें जाते हैं। तो ये भी कंपनी एक एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनी है, करीबन 70% इसका एक्सपोर्ट्स होता है। फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है, रिटर्न ऑन इक्विटीज़ कंपनी का बहुत ज़्यादा है, और ये फार्म टू फोर्क मॉडल पे, मतलब एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल पे काम करती है। तो जो अंडे होते हैं, जो एग्स होते हैं, इनके खुद के होते हैं मतलब इनके खुद के पोल्ट्रीज होते हैं, एंड दे मेंटेन दोज पोल्ट्रीज। सो आई थिंक 1.5 year back this company's stock price took a beating because the profitability took a beating. Expenses increased because the company was doing capex to put these poultry farms and manage these poultry farms. तो vertically integrated player है, अच्छी कंपनी लग रही है। द capex doubled in 2 years if you just check the fixed asset data as well. फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है, हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स बेचती है, एंड डिप्रिशिएटेड रूपी का कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल रहा है इसके भी स्टॉक प्राइस को। द नेक्स्ट कंपनी इज़ एरिस इंफ्रा। तो इस कंपनी का थोड़ा बिजनेस मॉडल इंटरेस्टिंग है। इसका सिर्फ बिजनेस मॉडल पढ़ना, उसके आगे कुछ मतलब नंबर्स वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत एक इंक्यूबेटरी और पायलट स्टेज में ये कंपनी है। तो बेसिकली ये कंपनी क्या करती है मैं समझा देता हूँ। तो इनका जो एक बिज़नेस मॉडल है, लेट्स से बहुत सारे जो रियल एस्टेट डेवलपर्स होते हैं, तो जैसे गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं। गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस बोलता है मैं एक छोटा सा डेवलपर हूँ, मैं 4 बिल्डिंग बांध रहा हूँ यहाँ पे, और मुझे उसके लिए सीमेंट चाहिए, स्टील चाहिए और कुछ प्लास्टिक चाहिए। तो इट गोज़ टू एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस एंड इट टेल्स एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस दैट दिस इज़ व्हाट आई रिक्वायर। तो एरिस बोलता है यार यू डोंट वरी, मेरे पास बहुत सारे वेंडर्स है, मेरा कॉन्टैक्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ है, स्टील मैन्युफैक्चरर्स के साथ है, मैं सब कुछ पैक करूँगा, बिल विल का कोई टेंशन नहीं, मैं सब कुछ पैक करके तेरे साइट पे तेरे को माल पहुँचा दूंगा, तू ये सब झंझट में मत पड़, तू बस अपने काम पे, जो तेरा कोर काम है उसके ऊपर ध्यान दे, ये जो सप्लाई चेन का काम है वो मैं कर दूंगा। तो गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस इज़ वेरी हैप्पी, और थोड़ा कुछ बल्क बाइंग हो रही है तो थोड़ा डिस्काउंटेड रेट पे भी बल्क बाइंग हो जाती है। तो गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस इज़ हैप्पी, एरिस इंफ्रा इज़ हैप्पी। ना गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एरिस इंफ्रा को बोलता है यार अभी के लिए तो ठीक है ना, स्पॉट पे तू ये सब चीज़ें करके दे रहा है, बट ना 1 साल के बाद मेरा ये प्रोजेक्ट आ रहा है जहाँ पे मुझे 500 किलो सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू बाई सीमेंट एट स्पॉट प्राइजेस, क्या तू कुछ कर सकता है क्या? तो एरिस इंफ्रा इट गोज़ टू इट्स वेंडर्स, तो उसके पास एक बहुत बड़ा पूल है वेंडर्स का, लेट्स से एक 30 से 40 रीजनल सीमेंट कंपनीज होगी, वहाँ का अगले साल का वो समझता है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना होगा, क्या होगा, एंड उसके मुताबिक वो प्लान करता है कि ये पहली जो सीमेंट कंपनी है उससे मुझे 50 किलो लेना है, दूसरी सीमेंट कंपनी से 200 किलो लेना है, तीसरी कंपनी से मुझे 250 किलो लेना है, एंड एट दिस पर्टिकुलर time and date next year I have to procure and get this stuff to Garuda Constructions। तो कहीं ना कहीं स्पॉट में बाइंग हो रही है और कहीं ना कहीं फ्यूचर में बाइंग हो रही है। तो थोड़ा यहाँ पे जो बिजनेस मॉडल को चेंज करके उसको थोड़ा लॉन्ग टर्म बनाया जा रहा है। सो दिस कंपनी का थोड़ा बिजनेस मॉडल आप पढ़िए, this looks like an interesting business model, you need to explore this further। The last company is Taj GVK, it's a JV between GVK Group and Taj, करीबन 2000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, it's trading at a PE of 14। तो हर वक्त आप चेक कीजिए कि इंडस्ट्री का PE क्या है, so that is something which could help you to find value। So the industry PE for hotels is 31, it is cheaper than Lemon, Chalet, Ventive, जो भी ये उसके competitors है, it's cheaper than that। इसके जो रूम्स होते हैं वो थोड़े प्रीमियम रूम्स होते हैं, बिकॉज ताज इज़ इन्वॉल्व ओवर हियर, एंड आई थिंक इन द लास्ट 1 month वी हैव सीन एयर ट्रैफिक हैज़ ग्रोन, तो ट्रैवल एंड टूरिज्म कुड मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम बैक। सो दिस वॉज अ ब्रीफ अबाउट दीज 8 companies। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय।